سب سے پہلے آپ کو بتائیں ٹی20 سیریز میں پاکستان کا بنگلہ دیش کے خلاف کلین سویپ. شاہینوں نے تیسرے ٹی20 میں بھی بنگلہ دیش کو پچھاڑ دیا. قومی ٹیم کی بنگال ٹائیگرز کے خلاف 7 وکٹوں سے فتح. بنگلہ دیشی ٹیم نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 197 رنز کا ہدف دیا. پاکستان نے 3 وکٹوں کے نقصان پر ہدف پورا کیا. محمد حارث کی جارحانہ بیٹنگ، 46 گیندوں پر 107 رنز بنائے. گرین شرٹس نے 2021 کے بعد ہوم گراؤنڈ پر سیریز جیتی ہے. ٹی20 سیریز میں پاکستان کا بنگلہ دیش کے خلاف کلین سویپ. شاہینوں نے تیسرے ٹی20 میں بھی بنگلہ دیش کو پچھاڑ دیا. قومی ٹیم کی بنگال ٹائیگرز کے خلاف 7 وکٹوں سے فتح. بنگلہ دیشی ٹیم نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 197 رنز کا ہدف دیا. پاکستان نے 3 وکٹوں کے نقصان پر ہدف پورا کر لیا. ٹی20 سیریز میں پاکستان کا بنگلہ دیش کے خلاف کلین سویپ. شاہینوں نے تیسرے ٹی20 میں بھی بنگلہ دیش کو پچھاڑ دیا. قومی ٹیم کی بنگال ٹائیگرز کے خلاف 7 وکٹوں سے فتح. فخر پاکستان اور ایشین گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی وطن واپسی. قومی ہیرو ارشد ندیم تھائی ایئر ویز سے لاہور ایئرپورٹ پہنچے. ڈی جی سپورٹس پنجاب خضر اقبال چودھری نے قومی ہیرو کا استقبال کیا. والدین، عزیز و اقارب سمیت شہریوں کی بڑی تعداد بھی ایئرپورٹ پر موجود. ارشد ندیم نے جنوبی کوریا میں ہونے والے فائنل میں 86.40 میٹر کی تھرو کی اور گولڈ میڈل جیتا. پاکستان نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 52 سال بعد گولڈ میڈل اپنے نام کیا. والد نے کہا بیٹے نے پہلے بھی نام روشن کیا اور آج بھی نام روشن کر کے آیا ہے. ارشد ندیم کو بہترین سہولیات دینے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کے مشکور ہیں. ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے والے قومی ہیرو کی وطن واپسی. اہل خانہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے قومی ہیرو کا استقبال کیا. 52 سال بعد ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ جیتا. ایک بار پھر میرے بیٹے نے ملک کا نام روشن کیا، یہ کہنا ہے ارشد ندیم کے والد کا. ان کا مزید کہنا تھا بیٹی کی کارکردگی سے بہت خوش ہوں. وقت کم، مقابلہ سخت. شہر ملتان کی چھوٹی منڈیوں میں بھی شہریوں کا رش بڑھ گیا. بیپاریوں کا کہنا ہے کہ منڈی میں خریدار نہیں ہیں، لوگ صرف جانوروں کا ریٹ پوچھ کر چلے جاتے ہیں. مزید جانتے ہیں وسیم شہزاد سے. جی بالکل، شہر ملتان کی بات کرتے چلیں تو عید میں وقت کم اور مقابلہ سخت ہے. دور دراز سے جو شہری ہیں وہ منڈیوں کی طرف پہنچ گئے ہیں، لیکن گلہ یہ ضرور ہے کہ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پچھلے سال کی نسبت. بہت کم جگہ ایسی ہیں منڈی میں جہاں پر ہمیں سودا ہوتا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. کچھ شہری ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیں منڈی کی کیا صورتحال ہے؟ بھاجن لینے والا کوئی نہیں، اتنی محنت سے پالتے ہیں. یہ بیڑی بیچی ہم نے 1,76,000 کی. قربانی سے پہلے لگ رہا تھا اس کا 1,90,95,000، اب لگے 1,76,000 کی بیچی ہے. اس طرح پالتے ہیں، اس طرح پیسے ملتے نہیں. اور یہ ہمیں کمیٹی والے بڑا تنگ کرتے ہیں. اتنی محنت کی ہے اتنے پیسے نہیں مل رہے. اگر میں دکھا سکوں تو یہاں پر جو ہے وہ ایک سودا ہمیں نظر آیا ہے پوری منڈی کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہوا. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم چاچا. وعلیکم السلام. یہ بتائیں پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ منڈی کے اندر کیا ریٹ دیکھ رہے ہیں اور کتنی مشکل کے بعد کوئی جانور سمجھ رہے ہیں؟ منڈی تو ظاہر ہے جی، مہنگائی کے حساب سے منڈی بھی تیز ہے. کیا بتاؤں آپ ظاہر ہے پچھلے سال سے ڈبل ریٹ ہوئے پڑے ہیں. تو آپ کامیاب ہو گئے خریدنے میں؟ جی الحمدللہ. بھائی جان یہ کامیاب جو ہے وہ ہو چکے ہیں. یہ ایک سودا ہمیں نظر آیا ہے ابھی تک اس سارے ایریے کے اندر ہوتا ہوا. لیکن جو شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظار میں ہیں، ہو سکتا ہے آخری ایام میں منڈی کے ریٹ کم ہو جائیں تو پھر وہ جانور خریدیں گے. بہت شکریہ وسیم شہزاد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. موسم کی بات کرتے ہیں. ملتان میں سورج کا پارا ہائی. شہری گرمی اور شدید دھوپ سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرنے لگے. بازاروں میں سن گلاسز، ٹوپیوں اور چھتریوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا. ملتان میں جون کا سورج آگ برسانے لگا. درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ شہریوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے. تیز دھوپ اور جھلسا دینے والی گرمی سے بچنے کے لیے شہریوں نے چھتریاں، ٹوپیاں اور سن گلاسز خریدنا شروع کر دیے. جون اور جولائی میں ویسے ہی گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ کچھ پریکاشنز ہیں جو کر رہے ہیں. احتیاط اپنی طرف سے تو کرتے ہیں، پانی وغیرہ، لیکن پھر بھی جو ہے نا اس سے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے. شہر کے مختلف علاقوں میں فٹ پاتھوں پر لگے سٹالز پر گرمی سے بچاؤ کی اشیاء دستیاب ہیں، جہاں قیمتیں عام مارکیٹ کے مقابلے میں نسبتاً کم ہیں. ٹوپیاں 350 سے 400 روپے، جبکہ سن گلاسز 150 سے 200 روپے میں فروخت ہو رہے ہیں. 150 روپے 100 روپے کا چشمہ بیچتے ہیں، کیپ 350 400 کا بیچتے ہیں. اور گاہ کھا جاتا ہے، لیکن گاہ کا ساتھ دن احساس نہیں ہوتا ہے. 10-20 روپے زیادہ لے لو، ادھر گرمی میں بیٹھا ہے. شدید گرمی میں جہاں شہریوں کے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں، وہیں دھوپ سے بچاؤ کی اشیاء کا فروخت کرنے کا کاروبار کرنے والے افراد کو بھی سہارا ملا ہے. کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان.
वफाकी हुकूमत 10 जून को बजट पेश करने के लिए तैयार है। सियासतदानों और ताजिर बरादरी ने बजट और हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर नजरें जमा ली। वफाकी बजट से कबल मुल्तान के सियासतदानों और ताजिर बरादरी ने बजट और हुकूमती मुआशरती पॉलिसियों पर नजर जमा ली। रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी की हुकूमत को बजट तजवीज पेश करते हुए कहना था कि अवाम महंगाई से परेशान है, बजट में रिलीफ मिलना चाहिए। हुकूमत गरीब दोस्त बजट पेश करे, ज़राई शोबे में बेहतरी लाई जाए, खादों की कीमतें कम की जाए, किसान का फसल पर खर्चा कम आएगा तो वो कम कीमत पर अजनास फरोख्त करेगा। बिजली की कीमतों को मजीद कम किया जाए, बिजली की कीमतों में जिस तरह भी जैसे कमी की जाएगी तो जो है आम सारिफ पर भी बोझ कम पड़ेगा और इसी तरीके से हमारी मईशत का पहिया जो है वो चलेगा। इसी तरीके से हम ये समझते हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में माकूल इजाफा किया जाए। ताजिर बरादरी भी आने वाले बजट से पुरुमीद है। चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा सुलेमान सदीकी का कहना है कि बजट IMF की शराइत पर बना तो बहुत टफ होगा। अभी तक ताजिर नुमाइंदों को बजट पर एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत अपने इकदामात पर नजरसानी करे और ताजिर दोस्त बजट पेश करे। डेली अखबारात में आ रहा है, हम सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि IMF ने ये कह दिया, IMF ने ये कह दिया, IMF ये कहता है। अगर हम IMF नहीं हर चीज करनी होती है तो फिर इस मुल्क का बजट IMF ही बनाती तो वही है। इनका तो काम वैसे ही ऐसा है कि ये असेंबली में खड़े होकर ये तकरीर कर देते हैं और तो इनके बस में कोई चीज है नहीं। सियासतदानों और ताजिर बरादरी ने मुतालबा किया कि आने वाले बजट में पेट्रोल, बिजली समेत बुनियादी अशिया जरूरियात पर सब्सिडी दी जाए ताकि मुल्क की मुआशियत का पहिया चल सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जुनेद अनवर के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान में महंगाई की शरह कम न हो सकी। दुकानदारों की मनमानी कीमतें, फल और सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। जिला इंतजामिया सरकारी निरखों पर अमल दरामद में नाकाम रही। मुल्तान में मनमाने रेट, फल और सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। जिला इंतजामिया सरकारी नरखों पर अमल दरामद न करवा सकी। सरकारी नरखनामे में प्याज 24, टमाटर 30 और आलू 50 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 40 और टमाटर 50 जबकि आलू 70 रुपए फी किलो फरोख्त हुआ। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 520 और लहसुन 170 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में अदरक 650 और लहसुन 250 रुपए फी किलो फरोख्त। शिमला मिर्च 200, भिंडी 170, करेला 100 रुपए फी किलो फरोख्त। बैंगन 120, टिंडा 140 और लसूड़ा 110 रुपए फी किलो फरोख्त। फलों में अंगूर 700, आलू बुखारा 409 और खुबानी 300 रुपए किलो फरोख्त। लोकार 350 और आम सिंधड़ी 350, आम सरोली 270 रुपए फी किलो फरोख्त। फालसा 250, आड़ू 300 और केले 250 रुपए फी दर्जन दस्तयाब। शहरियों ने जिला इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान के MDA चौक में सिग्नल्स न होने से ट्रैफिक के रवाने मुतासिर। बेहंगम ट्रैफिक शहरियों के लिए अजाब बन गई। चौक पर हादसात मामूल बन चुके हैं। इंतजामिया की नाअहली के बायस चौक पर अरसे दराज से ट्रैफिक सिग्नल्स न लग सके। मुल्तान पुलिस MDA चौक पर ट्रैफिक की बेहतरी के लिए मैकेनिज्म बनाने में नाकाम। अरसा दराज से चौक पर ट्रैफिक सिग्नल ना लग सके। ट्रैफिक सिग्नल मौजूद न होने से ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर। शहरियों का कहना है कि MD चौक पर 6 तरफ से ट्रैफिक आती है। बेहंगाम ट्रैफिक से चौक पर हादसा मामूल बन गए हैं। यहाँ सिग्नल नहीं है, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। जब स्कूल और ऑफिस के टाइम होता है तो यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है और जिन्होंने टाइम पे पहुँचना होता है वो टाइम पे नहीं पहुँच सकते, तो लिहाजा यहाँ जो है ना सिग्नल नस्ब किए जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि चौक से मुंसलिक शहराओं पर अहम कानूनी अदारे मौजूद हैं, मगर ट्रैफिक सिग्नल लगाने के लिए कोई प्लान तैयार ही नहीं किया गया। शहरियों का आला हुकाम से MDA चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लगवाने का मुतालबा। लोधरा बाजार की 5 मारूफ गलियों में बेहंगम पोल्स और बिजली के लटकते तार शहरियों की जिंदगी के लिए खतरा बन गए। लाखों दुकानदार और खरीदार वापडा की बेहिसी के बायस हमा वक्त जान हथेली पर लिए कारोबार पर मजबूर हैं। शहर का इकलौता बाजार और इससे मुल्हिका कारोबारी गलियां वापडा की तवज्जो की मुंतजिर। बेहंगम पोल्स और बिजली के लटकते तार मकीनों और राहगीरों की जिंदगी के लिए खतरा बन गए। दुकानदारों का कहना है कि वापडा एहलकारों ने एक एक पोल पर दर्जनों मीटर्स खतरनाक तरीके से लटका रखे हैं। कई बार शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वाकयात हो चुके हैं। बारिशों के दौरान पोल्स में करंट लगने के कई हादसात रोनमा हो चुके हैं। हम बहुत परेशान हैं। हमारी दुकान के साथ नंगी तारें वापडा वाले आते हैं, कभी मीटर उतार रहे हैं, कभी लगा रहे हैं, ऐसे खाली तारें छोड़ के चली जाती है। मेरे सामने डिग्री कॉलेज है। पिछले दिन एक लड़की आई है, बच्ची बेचारी को करंट लग गया, वो बेचारी बेहोश हो गई, हमने उसको उठाया। हम इतने परेशान हैं, हमें हर वक्त अपनी जान का खतरा है, माल का तो अलग, जान का ही बहुत खतरा है। हमने एप्लीकेशन दी है, वापडा में दरखास्त दे के थक गए हैं, वो हमारी नहीं सुन रही।
दुकानदारों के मुताबिक ओल्ड म्यूनिसिपल रोड और बाजार से मुल्हका मार्केटों पर मुश्तमिल गलियों में बिजली के तार खतरनाक हद तक लटके हुए हैं, मगर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। हमने पहले भी वापडालों को कितनी दफा दरखास्त दे चुके हैं, और ये तारें देख रहे हो, नंगी तारें हैं, बारिश आती है हमें खुद को भी करंट लगे हैं, और छोटे छोटे बच्चे शॉप पे आते हैं कपड़ा लेने के लिए, उनके साथ बड़े के साथ बच्चे आते हैं, उनके खंबे के हाथ लगाते हैं, उनके भी करंट लग चुके हैं, और वापडालों को ख्याल ही नहीं है। उनका एक ही ख्याल है बस 200 से यूनिट टपे और हम 40,000 या 50,000 का बिल भेज दें। सारिफीन का कहना है कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज इसी रोड पर वाक़या है। कई तालिबात को लटकते तारों से करंट लग चुका है। लगता है कि वापडा हुकाम को अच्छे काम के लिए भी एक लाश की जरूरत है। खंबे देखें, ये हालत खंभों की, कई बच्चे गुजरते हैं, किसी को करंट लग जाए, पटाखे होते हैं, धमाके होते हैं, कई नुकसान में किसी आग लगी। पिछले दिन में यहाँ पे तरपालों में आग लगी इन खंभों तारों की वजह से, जोड़ की वजह से। लिहाजा मेरी अपील है वापडा से आगे मेहरबानी करें, तमाम तार सेट करें, खंबे को सेट करें, कोई तार लीचे उसको ऊंची करी जाए, जानी नुकसान की बचत करें। जरूरत इस अमर की है कि वापडा अफसर दुकानदारों और सार्फिन की जान और माल की हिफाजत के लिए बेहंगम पोल्स, लटकते तार और जमीन को छूते मीटर्स को महफूज बनाएं। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रूही लोधराम। मुल्तान विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और महकमा विमेन डेवलपमेंट का खवातीन के लिए बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर कायम करने का फैसला। सदर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहती हैं सेंटर खवातीन को कारोबारी दुनिया में कदम रखने के लिए जरूरी तरबियत, मशावरत और सहूलियात फराहम करेगा। मुल्तान में विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और महकमा विमेन डेवलपमेंट के इश्तराक से खवातीन के लिए बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर कायम करने का फैसला। सदर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि इस जदीद इंक्यूबेशन सेंटर के जरिए खवातीन को कारोबारी दुनिया में रहनुमाई, तरबियत और माहिरीन की सपोर्ट फराहम की जाएगी। उसके बनने से हमारी खवातीन को बहुत फ़ायदा होगा और उसमें उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो आज की मीटिंग हमारी अजहर साहब के साथ, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इस प्रोग्राम के, उनके साथ बड़ी सक्सेसफुल रही है। इंक्यूबेशन सेंटर खवातीन को ना सिर्फ सीखने का मौका देगा बल्कि इन्हें वर्कशॉप्स, नेटवर्किंग और बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए मुकम्मल मुआवनत फराहम की जाएगी। हमारा मकसद खवातीन को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना है। हमें पूरी उम्मीद है, आज की मीटिंग काफ़ी हमारी सक्सेसफुल रही है और हमें खुशी है कि अगर मुल्तान में इंक्यूबेशन सेंटर बन जाए तो हमारी खवातीन काफ़ी मोटिवेटेड है इस चीज़ के लिए। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्टर्ड मेंबरान और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, दीगर डिजिटल स्किल्स की सहूलियात दस्तयाब होंगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान के निजी होटल में तलबा के लिए एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद। रॉयल कंसल्टेंट्स ने तलबा को दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज में दाखिले और स्कॉलरशिप के हवाले से आगाह किया। मुल्तान के निजी होटल में रॉयल कंसल्टेंट्स की जानिब से एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद। इवेंट में तलबा और तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तलबा को यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक की यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप के हवाले से आगाह किया गया। मैनेजर रॉयल कंसल्टेंट्स का अली रजा का कहना है कि एक्सपो का मकसद तलबा को दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स और दाखिले के तरीक़ेकार से आगाही फराहम करना है। हम 30 से ज़ायद कोर्सेज के मुतालिक रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। किसी भी कंट्री में, किसी भी डिग्री में, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए कम से कम 30 कोर्सेज ऐसे अवेलेबल होते हैं जिनमें वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये चीज़ हो जाती है कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान से जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं वो स्कॉलरशिप्स को सीख कर रहे होते हैं कि मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाए या अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। उनके बारे में भी स्टूडेंट को साथ साथ गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। तलबा का कहना था कि एक्सपो से बैरूनी मुल्क तालीम हासिल करने के हवाले से वाज़ेह रहनुमाई मिली। इन मौके से फ़ायदा उठाने के लिए पुरजोश हैं। मेरे फ्रेंड्स इनके थ्रू पहले जा चुके हैं, यूके और ऑस्ट्रेलिया वगैरह ना, उन्होंने ये रिकमेंड किया है, तो अच्छी इनकी सर्विसेज हैं। तो मैं भी इसलिए आज आया हूँ, विजिट किया, तो इंशाल्लाह इनसे प्रोसीड करवाते हैं अपना ऑस्ट्रेलिया का इंशाल्लाह। मुल्तान निजी होटल में रॉयल कंसल्टेंट के मैनेजर अली रजा ने अपनी टीम के हमरा तलबा और तालबात को बैरूनी मुल्क स्कॉलरशिप से आगाह किया, जबकि एक्सपो का मकसद बैरूनी मुल्क तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए नई राहें खोलना है।